Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Subha khair and a very good morning to you all. We would start our session with the recitation of the Holy Quran, and for that I would like to invite our Islamiyat specialist, Muhammad Zuhaib Hanif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Jazakallah Zuhaib. Welcome to the second webinar of the AKU webinar series. Yesterday, in our first webinar, we addressed concerns related to syllabus document, उसको किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह implement करना चाहिए. Also, we in detail discussed about the rationalized syllabus. What are the changes and what does the term CA, यानी classroom activity क्या होती है? जैसे classroom activity वो है जो कि हम assess नहीं करेंगे. Meaning, we would not be assessing those topics or SLOs marked as CA in the examination conditions. Today, the day is dedicated to discuss how to make quality one best MCQs, as this will enable you to better prepare your students for the upcoming examinations. Before we begin the session, quick recall for those who are joining us again, and information for ones who are joining us today only. If you have any questions, please share it here with your name and email address in the chat box. And we have a dedicated session where we would be answering your questions. So please make sure that even during the session, you can write your question. Also,
For your information, at the end of the session, we would be sharing a link for the evaluation form. That evaluation form will be required to be filled with your name and email ID. Once you have submitted your evaluation form, we would be sharing the certificate with you. Now, I would like to invite Rabia Nisar, Specialist Assessment, for the session. Thank you so much, Munira, for the introduction. Assalamu alaikum, participants. I hope you are all doing good. Okay, let's start the session for today. The topic is, today we will learn how to develop good quality one best MCQs. The objectives for today are, by the end of the session, the participants will be able to identify the components of one best MCQ. एक MCQ के क्या-क्या हिस्से होते हैं? What are the different components? Discuss the do's and don'ts of constructing one best MCQ. जिस वक्त आप एक MCQ बना रहे हो तो क्या do's हैं? कौन से वो काम है जो आपको करने हैं और कौन से वो काम है जो आपको नहीं करने, ख्याल रखना है. Implement valid MCQ assessments in the classroom to improve students' performance. Let's start. So, कल के session में we mentioned the different components of the MCQ. मैं उसका दोबारा से recap भी करा देती हूँ. The MCQ consists of a few components. हम इनको हिस्से कह सकते हैं. एक MCQ के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा है STEM. ये क्या होता है? ये एक केस होता है, एक सिनेरियो होता है, ये एक ग्राफ होता है, एक डायग्राम हो सकती है. जब भी सवाल शुरू होता है हम स्टूडेंट के आगे एक प्रॉब्लम पोज करते हैं. कभी वो पैराग्राफ की सूरत में होता है, ग्राफ होता है, कॉन्टेक्स्ट, सिनेरियो, कुछ भी. ये स्टेम कहलाती है, जो एक सूरत हाल हम बच्चे के आगे प्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, अब इस सूरत हाल को देखते हुए उसको किस सवाल का जवाब देना है. ये एक सवाल होता है, ऊपर सिनेरियो है, नीचे सवाल है. ये कहलाता है लीड इन. इट इज द क्वेश्चन और टास्क फॉर द स्टूडेंट. इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शंस. ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शंस. इनमें से एक की होती है और बाकी ऑप्शंस कहलाते हैं, या फिर उनको हम डिस्ट्रैक्टर्स भी कह सकते हैं. सो कितने हिस्से होते हैं एक एमसीक्यू के? 4. नंबर 1 स्टेम, नंबर 2 लीड इन, नंबर 3 ऑप्शंस जिसके अंदर एक की है और एक डिस्ट्रैक्टर्स है. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं. आई विल शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमसीक्यू. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 12 cookies need to be distributed equally among 3 children, right? ये एक सिनेरियो है, ये एक केस है जो हमने अपने बच्चों के आगे प्रेजेंट किया, उनके आगे रखा. ये क्या कहलाएगा? STEM. आगे आते हैं. What arithmetic process should be used when deciding how many cookies each child should get? Now this is the question. हमने सवाल पूछा कि किस चीज का, ऊपर जो आपने स्टेम पढ़ी उसका जवाब किस सवाल को मद्देनजर रखते हुए देना है. दिस इज कॉल्ड लीड इन. इसके बाद हम नीचे देखते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक की है और 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं. सो ऑप्शंस 1 की एंड 3 डिस्ट्रैक्टर्स. इस केस में डिवीजन इज द करेक्ट आंसर. क्या हर सवाल के अंदर स्टेम जरूरी है? सोचें. मैं एक और सवाल आपके सामने प्रेजेंट करती हूं. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? नीचे ऑप्शंस हैं, कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद. इसके अंदर लीड इन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. क्या इसके अंदर कोई स्टेम मौजूद है, सिनेरियो मौजूद है, कोई केस हमने प्रेजेंट किया, कोई ग्राफ दिया? नहीं. सो हमारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि स्टेम हो. कुछ क्वेश्चन स्टेम के बगैर भी होते हैं. सो
स्टेम, लीड इन, ऑप्शंस, तीनों मिलके भी एक सवाल बनता है, मगर स्टेम को हटा के भी आप एक एमसीक्यू जरूर बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एडवांटेजेस हम देखते हैं वन बेस्ट एमसीक्यू की। क्या फायदे हैं एमसीक्यू इस्तेमाल करने के? पहला फायदा, provides a faster way of scoring and assessing student learning outcomes. आप भी टीचर्स हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, whenever you give MCQs, whenever you check the MCQs, it is less time taking as compared to ERQs, CRQs. टाइम कम लगता है, रीडिंग कम होती है, there is only one answer, A is the right answer, you mark it. So quick assessment है. Can be marked with no bias, objectively. MCQ में it is of 1 mark. So the student can either answer it correctly and get that 1 mark, and the student can either mark it incorrectly and get 0 mark. यही दो options है हमारे पास, और तो कोई option नहीं है. So either you get 0 or you get 1. That means कि बहुत ज़्यादा objective है, right? Instead of CRQs जहाँ पे 1 mark है, then you explain कि 1 mark कब दिया जा रहा है, and then 2nd mark, and then 3rd mark कहाँ दिया जा रहा है. ऐसा केस हमारे पास MCQs में नहीं है. It is very objective. या 0 मिलेगा या 1 मिलेगा. Can be used effectively at almost all levels to measure a wide range of cognitive abilities. Cognitive abilities से याद आ रहा है कुछ? क्या होता है? Knowledge, understanding, application, different cognitive abilities हम student की judge करते हैं through assessment. और MCQ के तहत हम कोई भी cognitive ability को टेस्ट कर सकते हैं. MCQ में इतनी वुसअत है, वो हमें इतनी परमिशन देता है that we can assess any of the cognitive levels using MCQs. Further on the presentation हम ये भी आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से different subjects में हम different cognitive levels को assess कर सकते हैं with the help of MCQs. Okay. क्या लिखा आ रहा है? टाइम फॉर एन MCQ टेस्ट. तैयार हो जाएं. आपके पास चैट बॉक्स मौजूद है. अब क्या होने जा रहा है? आपका एक टेस्ट है. यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शो करूंगी, MCQs हैं. मुझे आप लोगों ने उसका जवाब देना है. जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको शो करूं, उसके जवाब चैट बॉक्स में आने चाहिए. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. Hurry up. I want answers in the chat. हिम्मत करें, please. Okay. हमारे पास जवाब आया है yes. Neptune. Neptune is the answer. Why is Neptune the answer? कोई रीजन भी देगा? कोई रीजन लिखे चैट पे. Why is Neptune the answer? Right. So it is the only option with the correct spelling. Wow. So somebody got to the answer just by knowing कि क्योंकि एक ही MCQ के अंदर, एक ही ऑप्शन के अंदर स्पेलिंग करेक्ट है, तो दैट मस्ट बी द राइट आंसर. वेरी गुड, गुड जॉब. यही टेक्निक अब हम आगे भी यूज करते रहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में. अटेंटिव रहे, पे अटेंशन एंड ट्राई टू आंसर द MCQ. यस. अब आप सोचेंगे ये क्या दिखा दिया इन्होंने हमें, बट यू कैन आंसर इट. गुड जॉब. Insect is the answer. क्यों? Insect कैसे आंसर है? What is the reason? Only option that is aligned with the grammar. कैसे? Let's read it. Bombus terrestris is an. And fish? No, fish के साथ तो an नहीं लगता. An animal? An insect? Yes. Insect के साथ an लगता है. That is why it is our key. And mammal? No, mammal के साथ भी and नहीं लगता. And bird? No, so it has to be insect. Good job.
नेक्स्ट क्वेश्चन, यही टेक्निक यूज करें, आंसर मी, क्या जवाब है? हिम्मत करें। यस, जल्दी, गुड जॉब, वी गॉट द आंसर, आइट्रेशंस। कैसे पता चला? हाउ डिड यू गेट टू द आंसर? रीजन बताएं, चैट में लिखे रीजन। We got the reason. Word repeat from stem and lead-in. Let's read the question. The iterative methods in numerical solutions involve. Iterative का word आ रहा है सवाल में, और नीचे factors, symbols, कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, fraction समझ में नहीं आ रहा, iterations ही हो सकता है because that is the only word that is present in the stem. So that is the right answer. Good job. यही technique use करें. Yes, next question. Answer. Hurry up. Chat box में answers आने चाहिए. Good job. We got the answer. The energy it radiates is infrared. कैसे पता चला? क्या आपको कंटेंट आता था? नहीं. क्या रीजन है? ग्रामर aligned with lead-in. हम पढ़ते हैं इसको, a black body at room temperature appears black because emissions, ये तो कोई सेंटेंस ही ना बना, because mostly low intensities, ये भी कोई अंग्रेजी का सेंटेंस नहीं है, because gamma radiation exposed, makes no sense, because the energy it radiates is infrared, एक मुकम्मल अंग्रेजी का जुमला. We got the answer. Good job. Next. जवाब आने चाहिए चैट बॉक्स में. Yes, we got the answer. This is the answer. How is this the answer? Okay, हमने ऊपर पहले एक बात बताई, हमने कहा prime modulus is an important part of linear congruential generator. However, it has the disadvantage that, अब आप नीचे देखें, disadvantage कौन से हैं? It works for complete process. That's never a disadvantage. It is energy efficient. ये तो advantage होता है. It is efficient. Advantage. So the only one left here is A. That is one reason. And other reason is कि अगर आप इनकी language देखें, तो the A option contains the most information. एक तो ये कि it was only one. It is the only one. That is the disadvantage. Then it contains the most information, and then it is the longest option. It is very appealing. लग रहा है book से copy paste हुआ है, rather than B, C and D that don't look like इनको book से लिया गया है. So most probably this is the answer. Good job. Next. ये interesting सवाल है. इसका जवाब किसको आता है? Answers, G. We got the answer. Good. You people are getting very good at this. Prime modulus. कैसे पता चला आप लोगों को? Content पढ़ के आए थे? नहीं. Information given in the previous question. Previous question क्या था? Let's go back. I'm going back to see the previous question. Yes, this is the previous question. First line read करें. Prime modulus is an important part of linear congruential generator. Next question. An important part of linear congruential generator is prime modulus. Good job. So, information was given in the previous question and you were able to answer it. इस सवाल का कौन जवाब देगा? Interesting question. Any answers? Any answers? We got the answer. लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं आंसर. Let's go to the first question to find out the answer. So 1 का आंसर क्या है? A. 2 का B. 3 का C. 4 का D. 5 A. 6 B. 7 का क्या होगा? C. Because we are going in a sequence. So
fixed predictable sequence of keys, because there was a predictable sequence of keys, you were able to guess the answer. Right. कैसा लगा आप लोगों का टेस्ट? You like it? Very predictable? Let's talk about this. आप लोग ये सोच रहे होंगे, सबके ज़हनों में इस वक्त ये सवाल होगा कि ये किस किस्म के सवाल हमसे पूछे गए या हमारे साथ क्या तमाशा किया गया. So let me tell you, yes, this is a tamasha. Let's go to one question. Okay. For example, ये एक सवाल है जो कि हम मैथ्स के स्टूडेंट से पूछ रहे हैं. एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि अपना कंटेंट पढ़ के आया है और उसने इस सवाल का जवाब इसलिए दिया क्योंकि कंटेंट उसको आता है. दूसरा स्टूडेंट वो है जिसको कंटेंट नहीं आता, वो कुछ भी पढ़ के नहीं आया है, बट क्योंकि इस क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी खराब थी और इसमें गेसिंग का एलिमेंट इतना ज्यादा था कि उसको बगैर पढ़े जवाब का पता चल गया, because she was able to guess it. So because there was guessing factor in the question, the assessment failed to distinguish between a student जो कि deserving था and a student who was not deserving. याद रखें, assessment का मकसद ये होता है that we have to differentiate between students who know the content and students who don't know the content. This means हमें MCQs को यूज करते हुए जब assessment करनी है, we have to be sure, 100% sure कि उसके अंदर guessing का element नहीं है. जो 7 सवालात आपको दिखाए गए, इनमें वो तमाम errors हैं जो questions को बहुत खराब बनाते हैं. ये एक बहुत खराब question paper है. इस तरह का सवाल अगर इस तरह का questionnaire करने का कोई फायदा ही नहीं है. इससे बेहतर है आप कोई टेस्ट करें ही ना. The point is, whenever you make MCQs, you have to make sure उनकी quality इस level की है that the guessing factor is not present. All the errors that you just saw in the test, these errors should not be present in your MCQs, and we have to make sure that the assessment is valid, is fair. जो बच्चा deserve करता है उसको marks मिले, जो पढ़ के आया है उसको marks मिले. So, अब हमें ये पता चल गया कि MCQs के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या errors होते हैं, लेकिन MCQs में होना क्या चाहिए, क्या good practices हैं, किस तरह से MCQs बनते हैं. I will take my leave from here. Now I will hand over the session to Miss Afreen Kawal. She is also a senior assessment expert at the Aga Khan University Examination Board, and she will take you onwards from this point here. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जैसे कि राबिया ने आपके साथ शेयर किए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें टीचर्स की माइनर मिस्टेक, कोई भी एरर ऐसा जो कि छोटे से छोटा हो लेकिन उसके मौजूद होने से एक एमसीक्यू कैसे फ्लॉप हो जाता है. इट फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टूडेंट्स हु नो द कॉन्सेप्ट and those who do not. For this purpose, एक अच्छा one best MCQ बनाने के लिए what do we require? It's just like when you are working in the kitchen, if you want to cook any food, for that you require to gather a list of ingredients. अब ये list of ingredients एक MCQ बनाने के लिए क्या होंगे? So I would like answers from all of you in the chat box कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वन बेस्ट एमसीक्यू बनाने के लिए जरूरी हैं. Before you start constructing a good one best MCQ, what are those things that you need to identify, that you need to figure out, keep in your mind? Are we getting the answers? Are you people responding? Okay.
For an MCQ, you need to identify for constructing one best MCQ, before you start your work, you need to identify the level of the learner for which you are developing the MCQ. That is it grade 9, 10th, first year or second year? For which subject would you like to assess your students? Is it maths, English, Islamia, biology, or Urdu? What is your basic aim? What is your purpose? For which SLO would you like to assess your students? Which student learning outcome would you like to target in your MCQ? So you need to define the objective. Next, which type of question would you like to give to your students? Is it knowledge-based? Would you like to test their recall, ability of facts and figures? Would you like to develop understanding-based questions, जहां students reason out कर सकें, जहां students एक दी गई information को comprehend करके सही answer identify कर सकें, या फिर आप application-based questions बनाना चाहते हैं, जहां you provide students with new information to manipulate with, to analyze, evaluate, synthesize in order to get to the correct answer. Hence, when you are starting to make MCQs, make sure that you have in your mind the list of things that are jotted here. आपको पता होना चाहिए कि level of the learner क्या है, किस subject के items आप बनाना चाहते हैं, आपका objective क्या है, और किस cognitive level पे किस type का question आप बनाना चाहते हैं, knowledge based, understanding based, application or beyond. Remember, MCQ एक mark का होता है, and for that mark you need to have one concept that is justifiable. इसको हम further अपनी next slides में देखेंगे. When you are constructing one best MCQ, what are the do's and don'ts that you need to focus? Let's see. जैसे आपको राबिया ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि एक MCQ के 3 different components होते हैं, a stem, a lead-in and options. Options further comprises of distractors and one correct answer. अब stem, एक अच्छा stem बनाने के लिए आपको किन चीजों की requirement है? How you can prepare a good stem? For a good stem, you need to provide detailed information. This information could be in the form of data, in the form of table, it could be in the form of a graph, a diagram, any kind of situation or a scenario. Lekin make sure the information that you are providing is giving essential, important information to the student to manipulate with. अगर आप कोई mathematical problem दे रहे हैं, make sure none of the steps are missing. Diagram दे रहे हैं, graph दे रहे हैं, to make sure all labels are there in the graph, in the diagram. Labeling अगर मौजूद नहीं होगी या कोई भी step missing होगा problem में, तो student सही जवाब तक पहुंच नहीं पाएगा. इसी स्टेम को बनाते हुए don'ts क्या है? Avoid the use of irrelevant information. Irrelevant information, जैसे राबिया ने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको एक एग्जांपल दिखाई थी. 12 cookies
are to be distributed among 3 students. 12 cookies हैं और 3 बच्चे हैं. Which method is the most appropriate to do equal distribution? अब आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? Will you use addition, subtraction, division or multiplication? इन सवालात को सॉल्व करने के लिए, अब जैसे ये सवाल जो आपसे पूछा गया 12 कुकीज और 3 बच्चों वाला, क्या इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें किस रेसिपी को फॉलो करके कुकीज तैयार की गई, कुकीज कितनी प्राइस पे बेची गई, इनको बेचने वाला कौन था, और इन कुकीज को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए, क्या इन सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. हमें तो सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 12 कुकीज हो और 3 बच्चे, तो हम डिवीजन के थ्रू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. हेंस हमें irrelevant इंफॉर्मेशन से गुरेज करना चाहिए. दूसरा, try and avoid the use of uncommon terminologies. ऐसे टर्म्स, ऐसे अल्फाज जिनसे स्टूडेंट्स वाकिफ ना हो, ऐसी टर्म्स जो कि डिफिकल्ट हैं, जो कि आपने थ्रू आउट द कोर्स पढ़ाने में इस्तेमाल नहीं की, इन टर्मिनोलॉजी से गुरेज कीजिए. Try and avoid them. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूज करते हैं टर्म perplexed, baffled, bewildered. Oh my God, इतनी डिफिकल्ट जार्गन्स, क्या बच्चों को इनके मीनिंग्स मालूम है? अब बच्चा इस मीनिंग के स्ट्रगल में सवाल को ही भूल जाता है कि सवाल में इंफॉर्मेशन दी क्या गई है, और वो इसको मैनिपुलेट ही नहीं कर पाता. तो अब करे क्या? टीचर को चाहिए कि rather than using such difficult jargons, वो इस्तेमाल करे लफ्ज confused, puzzled, जो कि आसान भी है और स्टूडेंट आसानी से समझ भी सकते हैं. सिमिलरली पाकिस्तान में रहते हुए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टेट्स या प्रोविंसेस? ऑफ कोर्स हमने हमेशा बचपन से सुनते हुए आए हैं प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. स्टेट्स हमारे लिए बहुत ही अनकॉमन है. नेक्स्ट, यू नीड टू अवॉइड द यूज ऑफ एब्रिविएशंस. क्यों भाई? एब्रिविएशंस क्यों नहीं? अब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है ATP. अगर इंग्लिश का स्टूडेंट होगा तो कहेगा ATP स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन फॉर फुटबॉल प्रोफेशनल्स. बायो का स्टूडेंट होगा तो कहेगा नहीं नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा तो कहेगा ATP स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. अब इन तीनों में से सही कौन? दिस ओनली द एग्जामिनर नोज. उसने किस पर्सपेक्टिव से ATP दिया है. सिमिलरली GDP बायो का स्टूडेंट होगा तो कहेगा गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट खड़े होकर कहेगा नहीं नहीं, ये तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. तो अब इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें? इट इज बेटर व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ गुड स्टेम, मेक श्योर कि इंफॉर्मेशन में आप पहले फुल फॉर्म लिखिए और फुल फॉर्म के साथ ब्रैकेट में एब्रिविएशन दे दीजिए. तो इस तरह जो फुल फॉर्म से फेमिलियर है, फुल फॉर्म के बेसिस पे सवाल सॉल्व कर ले, और जिन्हें एब्रिविएशन आसान लगती है समझना, वो एब्रिविएशन के बेसिस पे सवाल सॉल्व कर लें. तो हेंस फॉर डिजाइनिंग अ गुड स्टेम, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, all the essential information, nothing irrelevant, no uncommon terminologies, and avoid the use of abbreviations. Next, information तो बना ली, अब इस information का करना क्या है? You need to develop a good lead-in.
एक सवाल जो बच्चे को सोचने पे मजबूर करे कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे मैनिपुलेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंचा जाए। गुड लीड इन कैसे बनाया जाएगा? एनी वाइल्ड गेसेस? आपके जवाब क्या होंगे? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके हमें जवाब बताएं कि गुड लीड इन बनाने के लिए क्या जरूरी है। गुड, आंसर्स आपके आने शुरू हो चुके हैं और हमें आपके आंसर से पता चलता है कि यस, when you are developing a good lead in, you need to have a statement or a direct question. Direct question यानी कि क्लोज एंडेड, जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, जैसे which of the following is a vector quantity, या which of the following instruments is used in measuring humidity. आप चाहें तो लीड इन को स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, एंड ओपन एंडेड स्टेटमेंट जो कि ऑप्शंस पे कंप्लीट होता है, जैसे द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स इज, या फिर MS Excel is used for data analysis because इसके अलावा आपका जो गुड लीड इन है ये फोकस करता है किसी एक कॉन्सेप्ट, किसी एक फीचर पे। जैसे हमने पहले भी कहा, 1 MCQ 1 mark. 1 mark is justifiable when you ask any one concept, one feature. This feature could be any basic component, कोई भी part, या फिर कोई प्रोसेस या मेथड, या फिर कोई यूज। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप बात करें तो आप किसी भी ऑर्गन पे बेस करता हुआ सवाल पूछ सकते हैं। डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड प्रोसेस पे बेस करता हुआ सवाल मालूम कर पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। यूजेस, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स का यूज क्या है? How are enzymes used in the process of digestion? Next, ये तो हो गए do's. Don'ts क्या होंगे for a good lead-in? Avoid the use of negative phrases. Example, except, not. Why? हम except और not को avoid क्यों करें? What is the reason behind? Let's get answers from you. Chat box का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से बताइए कि negative phrases को avoid क्यों करना जरूरी है when it comes to a good lead-in. जी, जवाब दीजिए. Very good. Keep on writing. Keep on sharing your answers. Very good. Negative phrases को avoid करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो ये स्टूडेंट्स से ओवरलुक हो सकते हैं, दूसरा ये असेस करते हैं ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर मेंशनिंग इन द क्वेश्चन, एंड सो द स्टूडेंट हैज टू थिंक रिवर्सली. फॉर एग्जाम्पल, which of the following is not a vegetable? आप स्टूडेंट को मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए कि भाई इनमें से अनियन, कैरेट, ऑरेंज, क्यूकम्बर वेजिटेबल कौन सा नहीं है? क्या अनियन वेजिटेबल में शुमार नहीं होता? क्या कैरेट एक वेजिटेबल नहीं है? क्या ऑरेंज एक वेजिटेबल नहीं है? क्या क्यूकम्बर को आप वेजिटेबल, सब्जी कंसिडर नहीं करते? भाई इसमें से सब्जी कौन सी नहीं है? इतना घुमाकर सवाल पूछने से बेहतर है आप डायरेक्टली पूछ ले, which of the following is a fruit? भाई इनमें से फल कौन सा है? आसान.
आपकी भी जिंदगी आसान, स्टूडेंट की भी जिंदगी आसान। ऑरेंज। कोशिश कीजिए, सिंस ये सवाल चैलेंजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके स्मार्ट स्टूडेंट्स को स्ट्रगलर्स से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनकी परसेंटेज कम से कम हो। जैसे 10 सवालों में कोई एक सवाल, और नॉट को और एक्सेप्ट को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको कैपिटल करके प्रेजेंट करें, क्योंकि कैपिटल होगा तो एटलीस्ट चीख चीख के कहेगा कि मैं मौजूद हूं सवाल में, मुझे देखो, मुझे पढ़ो। नेक्स्ट, अब आपने स्टेम बना लिया, लीड इन बना लिया। लीड इन में आपने ध्यान रख लिया कि आपका जो लीड इन है वो चाहे स्टेटमेंट की फॉर्म में हो या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो। आपने जो है कोशिश की कि वो किसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस करता हुआ हो, और आपने कोशिश की कि आप उसमें नेगेटिव्स ना डालें। अब आता है मरहला ऑप्शंस बनाने का, जो कि सबसे मुश्किल तरीन काम है। अक्सर होता है कि 3 ऑप्शंस तो बन जाते हैं, चौथा नहीं बन पाता। आइए देखते हैं कि गुड ऑप्शन बनाने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या हमारे डूज है और क्या हमारे डोंट्स हैं। गुड ऑप्शंस बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपके तमाम ऑप्शंस एक लेंथ के हों। अगर आप फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक लेंथ के फ्रेजेस इस्तेमाल करें, सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं तो एक लेंथ के सेंटेंसेस हो, वर्ड्स हैं तो एक लेंथ के वर्ड हो, क्योंकि जरा भी लेंथ 19-20 आगे पीछे होती है तो एक तरह का स्टूडेंट को क्लू मिल जाता है, और कॉग्निटिव एबिलिटी के बजाय आप गेसिंग के चांसेस बढ़ा देते हैं। दूसरा, आप कोशिश करें कि आपके गुड ऑप्शंस आर इन अग्रीमेंट विद द लीड इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, टेंसेस एटसेट्रा। मतलब ग्रामर के तहत आपका लीड इन अलाइंड हो आपके ऑप्शंस के साथ। आप जो ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो लीड इन के साथ जुड़कर मुकम्मल हो, सेंटेंस को मुकम्मल करें। जैसे यहां पर राबिया ने अपनी प्रेजेंटेशन में शेयर किया था कि बॉम्बस टेरेस्ट्रिस इज एन फिश, एन इंसेक्ट, एन मैमल एंड बर्ड। अब ग्रामर के रूल के तहत क्या एन फिश के साथ जाता है, क्या एन मैमल के साथ जाता है, क्या एन बर्ड के साथ जाता है? वाओ, टीचर ने तो मुझे क्लू दिया है। एन तो सिर्फ इंसेक्ट के साथ जाता है, वावल्स के साथ जाता है। वाओ, आई कैन इजीली सॉल्व दिस। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि बॉम्बस टेरेस्ट्रिस आखिर होता क्या है, मुझे कोई नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि एन इंसेक्ट होता है, बाकी एन ना फिश के साथ जाता है, ना मैमल, ना बर्ड के साथ। Hence, my answer is insect, and that is correct. Next, आपके options आप चाहें तो alphabetically arrange करें, चाहे descending order में या ascending order में। Alphabetically A, B, C, D, descending 10, 8, 5, 3, या फिर ascending 1, 2, 3, 4, smallest to biggest। टर्म्स ऐसे इस्तेमाल करें जिससे स्टूडेंट्स फेमिलियर हो, जो कि स्टूडेंट्स को नोन हो, थ्रू आउट द कोर्स आपने वो इस्तेमाल करके उन्हें फेमिलियराइज किया हो। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी जब हमने परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज की एग्जांपल शेयर की। उसी तरह एक सवाल सोचें, अपने पास चाहे तो लिखें। Which of the following is not a characteristic of population? A, birth rate, B, death rate, C, stratification, D, sex ratio। अब birth rate भी आसान है, death rate भी आसान है, sex ratio भी आसान है। What does stratification means?
इतना मुश्किल टर्म, इसका तो मीनिंग भी नहीं पता। ऐसे टर्म्स जिनसे बच्चे वाकिफ ना हो अक्सर इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं एज इनकरेक्ट आंसर्स। और प्लस अगर आप गौर करें तो ये चारों ऑप्शंस होमोजीनियस भी नहीं है, दे आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। क्यों? बर्थ रेट में देखें 2 वर्ड्स, डेथ रेट में देखें 2 वर्ड्स, सेक्स रेशियो 2 वर्ड्स, लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन पे आप आए तो ये सिर्फ सिंगल वर्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं टीचर मुझे कोई क्लू दे रही है? यकीनन यही आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि आपके ऑप्शंस होमोजीनियस हों, एक ही कॉन्टेक्स्ट के। अगर आप वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो आपके तमाम तर ऑप्शंस वेजिटेबल से रिलेटेड हो, ना कि कोई फ्रूट उसमें मेंशन हो। अगर आपके ऑप्शंस कंट्री से रिलेटेड हैं तो मेक श्योर यू टॉक अबाउट कंट्रीज इन द ऑप्शंस एंड नॉट एनी सिटी, टाउन और व्हीकल्स। इन चीजों का ख्याल रखते हुए अगर आपने कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है, बेशक डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन आपने वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई है थ्रू आउट द कोर्स, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अनकॉमन हो, क्योंकि अक्सर होता है कि आप अगर किसी लैंग्वेज का एग्जाम ले रहे हैं, किसी फॉरेन लैंग्वेज का, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसी टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे वो पेपर डेवलप करें। बायो की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री से मुख्तलिफ है, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज कंप्यूटर साइंस से और कंप्यूटर साइंस की कॉमर्स से। उसी तरह उर्दू की टर्मिनोलॉजीज इस्लामियात से और सिंधी से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान स्टडीज, एथिक्स, हर किसी की अपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो उस पेपर में असेस की जाती हैं और करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन टर्मिनोलॉजीज पे फोकस नहीं करेंगे तो बच्चा उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएगा। इन टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करना लाजमी है, लेकिन ये तभी कॉमन हो सकती हैं जब आप इनका रोजमर्रा इस्तेमाल करेंगे अपने क्लास में, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन लेसन्स को पढ़ाने में। आइए हम आगे चलते हैं। गुड ऑप्शंस, इसमें आपने देखा, जैसे राबिया ने बताया था अपनी स्लाइड में, कि 4 ऑप्शंस में से 3 डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं और एक करेक्ट की होती है। करेक्ट की को अभी हम पार्ट करते हैं। हम बात करते हैं 3 डिस्ट्रैक्टर्स पे। ये डिस्ट्रैक्टर्स प्लॉजिबल होने चाहिए। प्लॉजिबल, they should have a good reason to be part of the question. क्या मतलब? What does plausible mean? क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है? चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बताइए प्लॉजिबल से मतलब क्या है? What do you understand by the term plausible? क्या किसी को मालूम है? क्या कोई जवाब दे रहा है? Should I wait for a minute or 2? Yes, I'm getting the answers. Yes. People are writing, trying, working out. Good, good. Continue. थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को खंगालिए और सोचिए plausible का मतलब क्या है? Why it should be a part of the question? चलें, आपकी आसानी के लिए एक सवाल पूछती हूँ। सवाल कुछ ये है कि Afan University Examination Board provides intellectual workshops on developing A. Fire safety and prevention, psychotherapy research skills, questioning skills, cooking skills. मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ।
Afan University Examination Board provides intellectual workshops on developing A. Fire safety and prevention, B. Psychotherapy research skills, C. Questioning skills, D. Cooking skills. बताइए इसका जवाब क्या होगा? क्यों आप लोगों ने क्वेश्चनिंग स्किल को सिलेक्ट किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आप किसी ऑप्शन पे क्यों नहीं गए? क्योंकि आखान एग्जामिनेशन बोर्ड का ना तो फायर सेफ्टी से कोई कनेक्शन है, ना ही साइकोथेरेपी रिसर्च से कोई कनेक्शन है, ना ही ये कोई कुकिंग के शोज अरेंज करता है आपके स्किल्स डेवलप करने के लिए. So the only thing that Afan University Examination Board can develop here, according to this question, is the questioning skills. यानी आपके जो A, B और D ऑप्शन थे वो completely randomly picked थे, ऐसे ही, जिनका कोई पर्पस ही नहीं था, और स्टूडेंट ने इजीली पिक कर लिया क्वेश्चनिंग स्किल. सिमिलरली बच्चे मोलारिटी का फॉर्मूला जब इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन में तो लिखते हैं M1V1 upon N1 is equal to M2V2 upon N2. कभी कभी बच्चे N1 की जगह N2 और N2 की जगह N1 की वैल्यू लिख देते हैं. कभी M1V1 upon N1 is equal to M2V2 upon N2 की जगह M1V1 is equal to M2V2 डाइल्यूशन का फॉर्मूला लिख देते हैं. कभी मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. कभी जब उनको समझ नहीं आ रहा होता तो M1 plus V1 upon N1 is equal to M2 plus V2 upon N2 कर देते हैं. ये सब क्या है? These are called careless mistakes, minor error. जब स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन में आके वो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर देता है आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज में. तो आपका पर्पस क्या है? आप इन सारी मिस्टेक्स को जमा करें और इनके बेसिस पे डिस्ट्रैक्टर्स बनाएं. तो अब ये डिस्ट्रैक्टर्स आपके ऑथेंटिक होंगे. क्यों? क्योंकि जो गुड स्टूडेंट होगा वो मोलारिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए की तक पहुंच जाएगा. लेकिन वो स्ट्रगलर्स जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए, जरा सा ट्विस्ट किया प्रॉब्लम को, तो किसी ना किसी उस डिस्ट्रैक्टर पे पहुंच जाएंगे जो आपने उनकी मिस्टेक के बेसिस पे बनाए हैं. तो इस तरह से आप स्टूडेंट को लॉजिकली क्रिटिकली सोचने पर मजबूर कर देते हैं और गेसिंग रिड्यूस कर देते हैं. नेक्स्ट, आप प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स बनाने के लिए कोई ऐसे स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं जो सही तो है लेकिन सही आंसर ना हो. जैसे आपने कहा एडवांटेजेस, which of the following is an advantage of natural fertilizer? अब नेचुरल फर्टिलाइजर का एडवांटेज तो एक ही होगा करेक्ट आंसर. बाकी बी सी डी में डिसएडवांटेजेस लिखने के बजाय आप लिखें एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर. बच्चा एसएलओ पढ़ता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पढ़ता है नेचुरल फर्टिलाइजर्स वर्सेस सिंथेटिक फर्टिलाइजर. तो ये सवाल उसे सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई इन चारों ऑप्शंस में से एडवांटेज नेचुरल फर्टिलाइजर का कौन सा है और बाकी एडवांटेजेस उसके नहीं हैं. तो हेंस गुड ऑप्शंस में जो 3 डिस्ट्रैक्टर्स आप बना रहे हैं, मेक श्योर कि दोज आर प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स having a good reason to be part of the question. They are not randomly picked and they contain common errors or misconceptions of students or statements that are true but do not answer
that particular question. Next, let's see another example. The city of Pakistan that is famous for its export of sports goods is A. Khuzdar, B. Hyderabad, C. Sialkot, D. Nौशेरा. बताइए भाई इसमें से कौन सा जवाब है? जल्दी जल्दी बताइए. वेरी गुड, सियालकोट. कैसे पता किया? बीइंग अ स्टूडेंट, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि सियालकोट इसका आंसर है एंड नॉट खुजदार, नॉट हैदराबाद और नौशेरा? जी बिल्कुल. एज अ स्टूडेंट, क्या खुजदार मेरे लिए कॉमन है? क्या ये बहुत फेमस है एक्सपोर्ट के मामले में? क्या हैदराबाद और नौशेरा एक्सपोर्ट के मामले में फेमस सिटीज हैं? They must be engaged in the export of something or the other, but are they famous? Are they well known to all the students across Pakistan? कोशिश कीजिए ऐसी सिटी के नाम इस्तेमाल करें जिनसे स्टूडेंट्स फेमिलियर हों. जैसे कराची. कराची एक ऐसी सिटी है जो किसी ना किसी एक्सपोर्ट में एंगेज्ड है. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स. फैसलाबाद, आप जानते हैं इतनी सारी टेक्सटाइल मिल्स आपकी फैसलाबाद में है, तो दे आर एंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथिंग. सी सियालकोट, डी गवादर. गवादर इज अ सी पोर्ट, यकीनन किसी ना किसी एक्सपोर्ट में एंगेज्ड है. अब बच्चे ने सोचना है कि भाई एक्सपोर्ट में तो कराची भी इन्वॉल्व है, फैसलाबाद भी है, सियालकोट भी है, गवादर भी है. स्पोर्ट्स गुड्स कौन एक्सपोर्ट करता है? तो नाउ द चाइल्ड हैज टू थिंक बिफोर आंसरिंग. नेक्स्ट, अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स तो आपने बना लिया. मेक श्योर कि इन डिस्ट्रैक्टर्स को अपनी किसी भी माइनर मिस्टेक से वीक ना बनाएं. ये वीक कैसे हो सकता है? वीक इस तरह से होंगे कि अगर आप इसमें कोई वेग टर्म या एब्सोल्यूट टर्म जोड़ दें. वेग टर्म जैसे यूजुअली, फ्रीक्वेंटली. एब्सोल्यूट टर्म्स ऑलवेज, नेवर. ये टर्म्स यूजुअली, अक्सर, ज्यादातर आपके डिस्ट्रैक्टर्स को कमजोर कर देती हैं. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जानते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यूनिवर्सली या तो सही है या गलत है. आइदर दे आर ट्रू और यूनिवर्सली फॉल्स. तो इस तरह स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स को इजीली डिसमिस करना एज इनकरेक्ट आंसर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, which of the following is correct for the weather in Karachi? It is usually cold in November. Is it? कराची का वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है. क्या नवंबर में अक्सर बेशतर सर्दी होती है? It frequently rains in July. क्या जुलाई में अक्सर बारिश होती है? Does it heavily rain in July? कराची में रहते हुए नवंबर में तो इस दफा गर्मी थी और जुलाई में भी कोई खास बारिश नहीं हुई. हेंस जवाब आपके दोनों आराम से एलिमिनेट हो गए. कोशिश कीजिए ऐसे वेग टर्म्स और एब्सोल्यूट टर्म्स से गुरेज कीजिए. नेक्स्ट, when you're talking about good options, try and avoid overlaps. ओवरलैप्स यानी एक से ज्यादा सही जवाब. आपका ऑप्शन ऐसा है कि ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही हो सकता है. आपने किसी भी टर्म के सिनोनिम्स इस्तेमाल कर लिए. सिनोनिम्स तो इस्तेमाल कर लिए, लिटरली एक जैसे मीनिंग.
मीनिंग सेम होने की वजह से सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं सवाल में। आइए इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। According to the given data, the number of medical colleges in Pakistan next year will be A, between 150 and 200, B, at least 150, C, less than 200, D, between 160 and 170. बताइए इसका जवाब कौन सा होगा? आप इस सवाल पे अपना कमेंट भी पेश कर सकते हैं। चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए एंड कीप ऑन राइटिंग। क्या समझते हैं इसकी की क्या होगी? विल इट बी ए, विल इट बी बी, सी और डी? अब आप गौर से पढ़ें। बिटवीन 150 एंड 200, एटलीस्ट 150 यानी कि 150 की बॉर्डर पे आ गया। लेस देन 200 यानी बिटवीन 150 एंड 200 आ गया। बिटवीन 160 एंड 170, ये भी रेंज 150 और 200 के दरमियान ही फॉल करती है। तो भाई इसमें से की कौन सी है? दे ऑल आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग। सारे के सारे ट्रू आंसर्स। Hence, the MCQ fails to assess students' cognitive ability. Next, try and avoid the use of qualifiers. All of the above and none of the above. क्यों भाई? एक एग्जाम्पल देखें। Which of the following is required for the growth of a plant? अब मैं एज अ स्टूडेंट बहुत जल्दी में हूं और मुझे जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करना है बिकॉज देयर आर टू मेनी एमसीक्यूज इन द पेपर एंड आई हैव टू गिव ऑलमोस्ट इक्वल टाइम टू ईच एमसीक्यू। अब मैंने पढ़ा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? ए, सनलाइट। डेफिनेटली सनलाइट इज रिक्वायर्ड। मैंने ए मार्क किया और मैं आगे बढ़ गई। मैंने बी सी डी पढ़ने की जहमत ही नहीं की। Oops, I lost 1 mark. Next, दूसरा student, which of the following is required for the growth of a plant? A, sunlight, B, oxygen. What is this? Sunlight और oxygen दोनों keys कैसे हो सकती हैं? C, nutrients from soil. Nutrients ये क्या होती हैं? And which kind of nutrients are required by the plants? I don't know. लेकिन since A और B दोनों सही हैं, better I mark all of the above. आपने स्टूडेंट को 3 ही ऑप्शंस दिए टू मैनिपुलेट विद। उसने A और B के बेसिस पे D मार्क कर दिया। Hence probability 25% से 33% कर दिया आपने। None of the above. None of the above का इस्तेमाल भी कुछ ऐसे ही है। A, B, C, D में आप रखते हैं none of the above, क्योंकि above ऊपर दिए गए A, B, C क्या सही है या गलत है? बच्चे ने कहा A भी सही नहीं है, B भी सही नहीं है, C भी सही नहीं है और D डेफिनेटली none of the above। अब none of the above आपने मार्क तो कर दिया एज अ स्टूडेंट। क्या टीचर ये फिगर आउट कर सकती है इसके बेसिस पे कि मुझे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं? आप नन ऑफ द अबव से ये तो बता सकते हैं कि स्टूडेंट को ये पता है कि ए भी सही आंसर नहीं है, बी भी सही आंसर नहीं है, सी भी सही आंसर नहीं है, लेकिन क्या नन ऑफ द अबव आपको ये बताता है कि स्टूडेंट को इस सवाल का सही जवाब मालूम है? क्या ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को क्लियर है विथ रेफरेंस टू द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नहीं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि ऑल ऑफ द अबव और none of the above का इस्तेमाल ना करें because it doesn't help you in identifying students' performance, students' ability to understand that particular concept. ये जज करने में आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करता। Next, when you are avoiding the use of vague terms, absolute terms, overlaps and qualifiers, वहीं पर
you need to avoid the opposites of each other. Opposites एक दूसरे के मुतजाद. जैसे एक एप्पल है, ऑरेंज नहीं हो सकता. एक ऑरेंज एप्पल नहीं हो सकता. उसी तरह अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट में कोई कंडीशन ऊपर नीचे करते हैं, चेंज करते हैं, तो उस चेंज से फैक्टर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन एक ही साथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता. तो उसी तरह एक एग्जाम्पल देखें. An increase in population in urban cities lead to, urban cities में population बढ़ने से रिसोर्सेस का इस्तेमाल ज्यादा होगा, वेस्टेज ज्यादा होगी, वेस्टेज से पोल्यूशन बढ़ेगी, पोल्यूशन कम नहीं हो सकती. तो कोशिश कीजिए ऐसे फैक्टर्स डालें इंक्रीज और डिक्रीज के साथ जिसपे बच्चा सोचने पर मजबूर हो, जिसपे बच्चा लॉजिकली एंड क्रिटिकली सोचकर सही आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करे. नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्टर्स तो आपके बन गए और आपने तमाम डूज एंड डोंट्स का ख्याल भी रख लिया. अब करते हैं काम की पे. की हम कहते हैं वन बेस्ट एमसीक्यू. क्या मतलब? वन बेस्ट करेक्ट आंसर. एक आंसर ऐसा कि जो अलग से स्टैंड आउट करे. आइए इस एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं. कॉपर इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स because it is strong, ductile, antibacterial, corrosion resistant. क्या समझते हैं आप? इस सवाल का क्या जवाब होगा? इन द मीन टाइम आप अपने जवाबात चैट पे लिखिए. मैं राबिया से इस सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश करती हूँ. जी राबिया, what do you think is the answer to this question? I think it is B, ductile. मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. Because ductile means कि कॉपर इस तरह का है कि उसको हम एक वायर के अंदर डाल सकते हैं. वी नो कि इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप एलिमेंट उसके अंदर डाल रहे हो वो फ्लेक्सिबल हो, नरम हो, मोल्ड हो सकता हो और बारीकी से उसकी एक तार बन सके और उसको हम एक तरह से पिरो सकें उस सांचे में जो कि वायर का होता है. So I think कि इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिसकी वजह से कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो उसका डक्टाइल होना है, क्योंकि अगर वो डक्टाइल ना होता तो उससे इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाना नामुमकिन था. राबिया, ठीक है, माना तुम्हारी बात डक्टाइल पे, लेकिन इसमें करोजन रेजिस्टेंट क्यों नहीं हो सकता? एक्सप्लेन करें आप, करोजन रेजिस्टेंट क्यों होगा? करोजन रेजिस्टेंट, देखो भाई, कॉपर की वायर मैं एक दफा लगाऊंगी अपने घर में, बार बार थोड़ी ना लगाऊंगी. मेरी तो कोशिश होगी कि कॉपर की वायर लॉन्ग लास्टिंग हो, ड्यूरेबल हो, जो ज्यादा देर चले, ऐसी कि ना हवा से, ना पानी से, ना किसी और चीज से रिएक्ट करके करोड हो. तो उसको तो करोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए. तुम क्या कहती हो इस बारे में? अब जो रीजन आप दे रही हो वो गलत नहीं. सो सब्जेक्ट के लिहाज से आपका भी रीजन करेक्ट है, मगर आप क्या मुझे ये बता सकती हैं कि मैं क्यों गलत हूँ? अगर मैं बी डक्टाइल कह रही हूँ और मैंने जो रीजन दिया था कि कॉपर क्योंकि नरम है और उसको आप इस्तेमाल करके वायर्स बना सकते हैं, इस रीजनिंग में क्या गलती है? बी क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी बात पे मैं रिफ्लेक्ट करते हुए, बात तो तुम्हारी सही है, डक्टाइल को भी हम आंसर मार्क कर सकते हैं. और डक्टाइल अगर हम देखें तो जाहिर बात है जब तुम वायर में कन्वर्ट करोगी, उस पर मेहनत करोगी, उसे मोल्ड करोगी, तो उस मेटल का स्ट्रॉन्ग होना भी तो जरूरी है, वरना अगर ब्रिटल होगा तो टूट जाएगा. यस, माय गॉड, इसमें तो ए भी की हो सकती है आपकी. तो ए, बी और डी तीनों ही की है, तीनों ही ओवरलैप्स हैं. हेंस
This is a flop question. Sorry, it does not assess students' cognitive ability. इसीलिए ऐसा सवाल बनाइए कि जिसमें जो भी एक्सपर्ट पढ़े उस सवाल को वो एक ही आंसर पर मुत्तफिका तौर पे पहुंचे। हर किसी की राय में वही एक आंसर, वही एक ऑप्शन, वही बेस्ट की हो फॉर दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू एंड नॉट एनी अदर। कोई ओवरलैप्स ना हो, ऐसा ना हो कि ए भी सही, बी भी सही और डी भी सही हो जाए। कोशिश कीजिए कि आपका करेक्ट आंसर, आपकी बेस्ट की सबसे आगे हो, सबसे अलग स्टैंड आउट करे। बाकी डी ए सी आपके लीस्ट करेक्ट ऑप्शंस, लीस्ट करेक्ट आंसर्स हो जो फार बिहाइंड हो। इस पे एक हम इस्लामिया की एग्जांपल सुन सकते हैं। जैसे सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने और तमाम इबादात की अदायगी के लिए शर्त अव्वल है रियाजत, तहारत, इस्तिकामत या इस्तिताअत। मैं फिर से रिपीट करती हूं, सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने और तमाम इबादात की अदायगी के लिए शर्त अव्वल है रियाजत, तहारत, इस्तिकामत या इस्तिताअत। आप क्या समझते हैं इसका क्या जवाब होगा? वाओ, सभी ने एक ही जवाब दिया है कि तहारत इसका आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। सो हेंस दिस इज वन बेस्ट एमसीक्यू हैविंग वन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपने तमाम तर डूज एंड डोंट्स देख लिए। इसके बेसिस पे मेक श्योर कि आपका एक एमसीक्यू इस तरह का दिखे जिसमें तमाम तर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके स्टेम में मौजूद हो, अलॉन्ग विद द लीड एंड शॉर्ट ऑप्शंस हो एक जैसी लेंथ के, ना कि कोई ऐसा सवाल हो कि जिसमें बहुत ही छोटा सा स्टेम हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो और लंबे लंबे ऑप्शंस हो जो कि अनइवन है, हैपहैज़र्डली अरेंज्ड है और किसी तरह की हिंट या क्लू दे रहे हो स्टूडेंट्स को टू गेट टू द राइट आंसर। यहाँ पे मैं अपना सेशन कंक्लूड करती हूँ विद अ स्मॉल डीब्रीफिंग कि आपने एक सवाल बनाने के लिए स्टेम की तख्लीक की, स्टेम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, टेबल, ग्राफ, डायग्राम एटसेट्रा। इसमें आपने कोशिश करनी है कि एब्रिविएशंस का इस्तेमाल ना करें या वही इस्तेमाल करें जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। दूसरा, आप कोशिश कीजिए अनकॉमन, अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल ना करें। आप लीड इन बना रहे हैं तो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और अ डायरेक्ट क्वेश्चन, focusing on one concept only and avoiding the use of negative phrases. When it comes to options, make sure 3 distractors आपके plausible हो, एक correct key हो, कोई भी overlaps ना हो, avoid the use of opposites, avoid the use of qualifiers, avoid the use of vague and absolute terms. Wish you all the best. Over here, I end my session and hand over the remaining session to Rabia Nisar कि अब वो आपको बताए कि भाई हमने MCQ तो तैयार कर लिया है, इस MCQ के साथ करना क्या है, what to do next. Thank you everyone. Thank you so much, Afreen. Thank you for explaining us everything in so much detail. Now I will take from here. I was just reading the comments और जो आपके comments आ रहे थे हमारे पास chat में, and I just want to clarify one thing here. हमारे पास बहुत सारे ऐसे comments आए कि हमें AKU EB के पेपर में accept और not के questions मिलते हैं। तो let me clarify here. We said कि हमें इसको avoid करना चाहिए, accept और not यूज करना एक एग्जामिनेशन पेपर में हमें कम से कम रखना चाहिए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम यूज कर सकते हैं लेकिन एक महदूद हद में। अगर आप हमारा कोई भी पेपर उठा के देख लें, उसके अंदर एक लिमिट है जिसके अंदर रहते हुए हम एक्सेप्ट और नॉट के क्वेश्चंस देते हैं। विच इज वाई जब आफरीन की वो स्लाइड भी आई तो उसके ऊपर लिखा था अवॉइड द यूज ऑफ, कोशिश करें कि इसको ना इस्तेमाल करें। कहीं कहीं ये होता है कि
आप एक्सेप्ट और नॉट इस्तेमाल करने में मजबूर हो जाते हैं। इन दैट केस बच्चे में इस तरह के सवालों की तादाद बहुत मिनिमम और कम रखें। आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने एमसीक्यू बना लिया, आफरीन ने हमें तमाम तर डिटेल्स दे दी कि आपने स्टेम यू बनानी है और लीड इन इस तरह बनाना है और ऑप्शन इस तरह बनाना है, बन गया। अब जबकि हमारा एमसीक्यू तैयार है तो अब क्या करना है? अब हमें उसको चेक करना है दो टेस्ट के थ्रू। देयर आर 2 टेस्ट्स दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन योर कंप्लीटेड एमसीक्यू टू चेक कि क्या इनकी क्वालिटी अच्छी है या अभी भी इनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। The first test is cover test. इसके अंदर हम options को hide करते हैं। And the second test is cognitive level test. इसमें हम STEM को hide करते हैं। अब इन टेस्ट को मैं demonstrate करूंगी आपको with the help of example. So we will first go to the cover test. Cover test. Cover test में आपने करना ये है कि आपके पास एक MCQ बन गया है, आप हाथ अपना यूज करें और उसके ऑप्शंस के ऊपर रख दें। दैट इज यू हाइड द ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको नहीं दिखने चाहिए। जब ऑप्शंस हाइड हो गए तो अब आपको क्या दिख रहा है? स्टेम या लीड इन। यहां पे हम एक सवाल देख रहे हैं, इस सवाल के साथ भी हमने बिल्कुल ये किया। ये एक एमसीक्यू है जो हमने बनाया है, इसके ऑप्शंस आपके सामने नहीं दिख रहे हैं, हमने उस पर एक तरह से हाथ रखा हुआ है और आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ स्टेम दिख रही है। स्टेम या लीड इन कह लें। इस सवाल में सिर्फ लीड इन है, स्टेम नहीं है। अगर स्टेम और लीड इन दोनों होंगी तो दोनों दिखेंगी, आपको सिर्फ ऑप्शंस को हाइड करना है। नेक्स्ट, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। जवाब दें। डिस्पोजेबल बैग्स आर, क्या जवाब है? चैट में इसका जवाब दीजिए। डिस्पोजेबल बैग्स आर। ओके, हमारे पास डिफरेंट तरह के आंसर्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है, कोई डिस्पोजेबल बैग्स के मटेरियल की बात कर रहा है, आर मेड ऑफ प्लास्टिक। कोई उनके एडवांटेजेस की बात कर रहा है कि हाँ एक फायदेमंद चीज है, हमें डेली बेसिस पे मदद देती है। कोई उसके डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा है कि ये एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। आप लोग सब मुख्तलिफ बातों पे क्यों अराइव हुए? इतने मुख्तलिफ जवाब क्यों आ रहे हैं? मुख्तलिफ जवाब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सवाल इस तरह का है कि वो आपको डायरेक्ट ही नहीं करता। सवाल इस तरह का होना चाहिए कि जब आप उसके ऑप्शंस को छुपा के उसके जवाब देने की कोशिश करें तो आपको एक डायरेक्शन मिले। डिस्पोजेबल बैग्स इस तरह होना चाहिए था कि द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल बैग्स आर, आप फायदे सोचते। द डिसएडवांटेज ऑफ डिस्पोजेबल बैग्स आर, आप उसके नुकसानात सोचते। द मटेरियल यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल बैग्स आर, आप उसके मटेरियल पे बात करते। किस डायरेक्शन में सोचना है आपको ये सवाल गाइड ही नहीं कर रहा। आप जवाब पे नहीं पहुंच पा रहे, ना ही आप ये समझ पा रहे हैं कि सवाल आपसे मांग क्या रहा है। ये एक अच्छा सवाल नहीं है। मैं अगर आपको इसके ऑप्शंस दिखाऊं तो वो भी बहुत फनी है। सो ये हमारा जो सवाल है, ये हमारा कवर टेस्ट फेल कर गया है। फेल कर गया है क्यों? क्योंकि जब हमने इसके ऑप्शंस छुपाए तो हम इसके जवाब की तरफ नहीं जा सके। So this question has failed the cover test. This question needs improvement. हमें इसके लीड इन को इम्प्रूव करना है, हमें इसमें बताना होगा हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, और फिर इसके ऑप्शंस को मजीद बेहतर करना होगा, तब ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल दिस क्वेश्चन इज नॉट गुड क्वालिटी. So this test has failed on this particular question. This was cover test. Now I will go to the next test. The next test is cognitive level test. क्या लिखा है आगे? Hide STEM. So first cognitive level test सिर्फ उन्हीं सवालात पे अप्लाई किया जाता है जिसमें STEM हो। जब STEM होगी तो आप उसको छुपाएंगे, कि जिस सवाल में STEM है ही नहीं हम उसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई ही नहीं करते। एक सवाल देख लेते हैं जिसके अंदर STEM है। The skeletal system in a human body provides support and movement. ये हमारी STEM है। The number of bones in a human body is, ये लीड इन, नीचे ऑप्शंस,
डिस्ट्रैक्टर्स और एक की है। अब हम इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं। हाइड स्टेम। स्टेम क्या है? द स्केलेटल सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड सपोर्ट। मैंने स्टेम छुपा दी। अब आप इसका जवाब दें। क्या जवाब है इसका? बायोलॉजी के टीचर्स अगर हमारे साथ हैं, क्या जवाब है? कितनी हड्डियां होती हैं इंसानी जिस्म में? यस, ओके, थैंक यू। सो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मैंने स्टेम छुपा दी तो मैंने आधा सवाल तो छुपा दिया, मैंने सिनेरियो छुपा दिया, सिनेरियो मैंने छुपा दिया, तो उसके बावजूद भी आप इस सवाल का जवाब दे पाए। ये जो स्टेम है ये कोई रोल नहीं प्ले कर रहा। जब मैंने इसको छुपाया तब भी आप इसका जवाब दे पाए। तो मेरा एक सवाल है कि इस स्टेम की जरूरत क्या थी? राइट, सो जिस वक्त हम स्टेम देते हैं हमारा एम ये होता है एज एन आइटम डेवलपर कि हम हायर कॉग्निशन को टेस्ट करें। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि स्टेम जो है वो इस तरह का हो कि उसको इस्तेमाल करके स्टूडेंट जवाब तक पहुंचे। क्या वो जवाब के तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हम इसको चेक करते हैं कॉग्निटिव टेस्ट से। हम स्टेम छुपा देते हैं। जब हम स्टेम छुपा देते हैं उस वक्त हमें स्टेम नहीं दिखता और हम सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आइडियली सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं होना चाहिए बिकॉज स्टेम अगर लिखा हुआ है तो इट शुड बी प्लेइंग अ रोल। However, here STEM is playing no role. This means this item has failed cognitive level test. ये सवाल STEM के साथ हायर कॉग्निशंस को मेजर नहीं कर रहा। आप इस सवाल में से STEM बराए मेहरबानी हटा दीजिए और इसको एज अ नॉलेज लेवल क्वेश्चन ही रहने दीजिए और इसको पूछ लें। मगर स्टेम के साथ जब आप इसको दे रहे हैं तो ये आपके हायर कॉग्निशंस को मेजर नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, और इसके अंदर स्टेम की कतन जरूरत नहीं है। ये सवाल हायर कॉग्निटिव लेवल्स को अगर टेस्ट नहीं कर रहा तो ये कॉग्निटिव लेवल के टेस्ट को फेल करता है। यहाँ पे अगर कोई ग्राफ गिवन होता और हम नीचे कहते यूजिंग द गिवन ग्राफ आंसर द क्वेश्चन, अगर हम ग्राफ को छुपा दें आप जवाब नहीं दे सकते। यस, नाउ दिस such a question would pass this test. I hope this is clear. When we hide the STEM, you can still give the answer. This is not a good question in terms of cognitive level. आप इसको use जरूर कर सकते हैं, आप इसको knowledge level पे use करें। Higher cognitive levels के लिए ये सवाल valid नहीं है। Higher cognitive level का सवाल बनाना है, उसकी मिसाल ये है, a graph is given, using the graph, answer the following question. In this question we have to use the graph. आप ग्राफ को छुपा देंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको कुछ जवाब समझ में नहीं आएगा। So that is measuring higher cognition. हमने टेस्ट की बात कर ली। जब आपने एक MCQ बना लिया, उस पे वो दोनों टेस्ट पास कर लिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें और फिर MCQ बनाने के बाद एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उसका डिफिकल्टी लेवल आइडेंटिफाई करें। एज अ टीचर हम ये जानते हैं या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन आसान होगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मुश्किल होगा या मॉडरेट होगा। तो एज अ टीचर ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी MCQs बनाएं उसको आइडेंटिफाई करें कि वो किस डिफिकल्टी लेवल पे है। ये चीज आपको हेल्प करेगी जब आप एग्जामिनेशन पेपर डेवलप करेंगे पूरा का पूरा, उसको बैलेंस करने में आपको ये चीज हेल्प करेगी। जब आपको पता होगा कि आपके पास कितने सवाल इजी हैं, कितने मॉडरेट हैं और कितने डिफिकल्ट। और इसके साथ साथ रेफरेंस भी, अगर आपने इस सवाल के अंदर कोई ग्राफ कहीं से लिया है, कोई पैसेज कहीं से लिया है, आप उसका रेफरेंस जरूर दे दीजिए कि इट इज टेकन फ्रॉम डॉन, इट इज टेकन फ्रॉम दिस बुक। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ओके, हमने यहाँ पे आपको बहुत सारे खराब MCQs दिखाए आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, लेकिन हमने अभी तक आपको अच्छे MCQs नहीं दिखाए। अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक MCQs आपको दिखाएंगे। हम ये जानते हैं कि यहाँ पे मिक्स्ड टीचर्स बैठे हुए हैं, तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे साथ हैं। आप तमाम MCQs को देखें, उनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप की पे पहुंचे, ठीक है। मकसद ये है कि हम आपको कुछ अच्छे MCQs दिखाएं जिनको देख के आप ये समझ सकें कि अच्छे MCQs जो कि
कॉग्निटिव लेवल का टेस्ट पास करते हैं, कवर टेस्ट पास करते हैं, वो कैसे होते हैं। हाउएवर इनके अंदर अभी भी कोई कमी बेशी हो सकती है, शायद इनके अंदर भी अभी भी कोई ना कोई एरर हो। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से। एक लाइन है जो कि 3 cups of tea बाय ग्रेग मॉर्टेंसन से ली गई है, हमने रेफरेंस दिया हुआ है। वो क्या लाइन है? Someone tugged a heavy quilt over Greg. For the first time in months, he slept indoors. ये क्या है? कौन सा कंपोनेंट है ये MCQ का? Yes, this is the STEM. ये एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन है जो हमने स्टूडेंट को दी। आगे लीड इन। What unusual thing happened to Greg in the given excerpt? क्या अनयूजुअल चीज हुई ग्रेग के साथ? अब हम देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि किसी ने उसके ऊपर एक हेवी क्विल्ट दिया और पहली दफा वो इंडोर सोया, पहली दफा। सो अनयूजुअल थिंग क्या है? यस, दैट ही स्लेप्ट इनसाइड अ हाउस। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस पे अगर हम गौर करें, ही वोक अप अलोन, he was given a quilt. Yes, he was given a quilt. हमने लिखा है someone tugged a quilt over Greg. But what was the unusual thing that happened to Greg? सवाल ये पूछ रहा है। तो सवाल का जवाब है he had slept inside a house. Next question पे चलते हैं। This question is from physics. हमने एक सिनेरियो दिया। If the radius of the earth shrinks by 1% while its mass remains the same, then the acceleration due to gravity on Earth's surface would be, अब इसमें एक फॉर्मूला होता है acceleration due to gravity. According to that, हम ये देखते हैं कि अगर रेडियस को श्रिंक कर दिया जाए, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में होता है रेडियस, सो ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है। अब इस सवाल को देख के सबसे पहला आपके जहन में ये आया होगा कि अभी आपने खुद ही बोला जब इंक्रीज दो तो डिक्रीज मत दो, अभी आप फिर यही दिखा रहे हैं। Let me clarify something. उस सवाल में हमने कहा था कि आबादी के बढ़ने से क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। डिस्ट्रैक्टर था इंक्रीज इन पॉल्यूशन, दूसरा था डिक्रीज इन पॉल्यूशन। तो आबादी के बढ़ने से तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, पॉल्यूशन का भी है, लैंड यूज का है, रिसोर्सेज का है। वहां पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके हम डिस्ट्रैक्टर्स बना सकते हैं। जहां पे हमारे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होता है हम मल्टीपल ऑप्शंस पे जाते हैं। हाउएवर यहाँ पे ये एक फिजिक्स का सवाल है जिसके अंदर एक फिक्स्ड फॉर्मूला है और उसके अंदर एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज या कम होगी या बढ़ेगी या वैसी ही रहेगी या ऊपर नीचे होती रहेगी, और यही चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस सवाल में और यही आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये एक मैथ्स का सवाल है। When two figures are similar, the ratios of the length of their corresponding sides are equal. The given figure shows two kites which are similar. STEM क्या है? ये डायग्राम, ये पूरा ऊपर का कॉन्टेक्स्ट। लीड इन, the value of x will be, नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो STEM है, लीड इन है। क्या ये कवर टेस्ट पास कर रहा है? चले इस क्वेश्चन के ऊपर हम टेस्ट लगा के देख लेते हैं। अगर मैं इसके ऑप्शंस छुपा दूं तो क्या आप जवाब पे पहुंच सकते हैं? तो यस, अगर एक मैथ्स का स्टूडेंट इसको कर रहा है तो सवाल के अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन गिवन है। सवालों को अगर आप जवाब को छुपा दें तो आप जवाब पे खुद से भी पहुंच सकते हैं। दूसरा टेस्ट, अगर मैं ऊपर का सिनेरियो छुपा दूं तो क्या भी मैं जवाब दे सकती हूँ? कॉग्निटिव लेवल टेस्ट। अगर मैं ये डायग्राम छुपा दूं तो क्या मैं वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकती हूँ? नो, आई कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो दिस क्वेश्चन इज मेजरिंग हायर कॉग्निशन। ये एक और सवाल है हमारे पास सोशल स्टडीज का। इसके अंदर एक 4 ग्रिड मैप है। दिस इज अ मैप दैट इज पार्ट ऑफ द SLO ऑफ पाकिस्तान स्टडीज सिलेबस, geography syllabus, and the students are told how to read a 4 grid map, और उसके अकॉर्डिंगली उनको एक ग्राफ दिया गया है, उनको इस मैप को रीड करना है और बताना है कि लोकेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है। 4 ऑप्शंस है नीचे। इसके अंदर भी अगर आप देखें
आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है. द डायग्राम दैट यू कैन सी, द ग्राफ दैट यू कैन सी इज आवर स्टेम. ये एक और सवाल है. दिस इज फ्रॉम उर्दू. इसके अंदर उर्दू और इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती चलूँ कि हम लोगों का जो स्टाइल ऑफ असेसमेंट है इंग्लिश उर्दू में वो ये है कि एक पैसेज दिया जाता है और फिर उससे मल्टीपल सवालात पूछे जाते हैं. ये पैसेज पहले बच्चा पूरा का पूरा पढ़ लेता है और उसके बाद तरतीब के साथ नीचे सवालात लिखे हुए होते हैं जिसका जवाब बच्चा उस पैसेज को पढ़ के देता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पूरा पैसेज है, नीचे रेफरेंस भी है खतूत गालिब से इक्तिबास, और नीचे सवाल दिया गया है. सवाल है कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है से कौन सी शख्सियत मुराद ली गई है. सो ऊपर पैसेज के अंदर दुश्मनों की तबीयत नासाज है ये यूज किया गया है, और उर्दू जबान अगर स्टूडेंट को आती है तो वो इस पैसेज को पढ़ के ये समझेगा कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है, दुश्मन किसको कहा जा रहा है, वो इस पैसेज को पढ़ के समझेगा और फिर नीचे मार्क करेगा. राइट. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हम आपसे शेयर करते हैं. हमने ये देखा कि एमसीक्यूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए किस तरह के होते हैं. अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स पे आप एमसीक्यूज किस तरह बना सकते हैं. देखिए, एक बहुत प्रिवेलेंट प्रॉब्लम हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि टीचर्स एमसीक्यूज बना रहे हैं, हाउएवर वो हायर कॉग्निशन पे नहीं है. तो ये जो हम आपको सवालात दिखाने जा रहे हैं इससे आपको मदद मिलेगी कि आप एक टॉपिक के हायर कॉग्निटिव लेवल्स के एमसीक्यूज डेवलप करें. कैसे? पहली एग्जांपल हम ले रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज के सब्जेक्ट से. So this is a question. The fertile plains of Pakistan are mainly situated in the regions of, नीचे 4 ऑप्शंस हैं. This is a knowledge based question. स्टूडेंट को सिंपल या पता होगा या नहीं पता होगा फर्टाइल प्लेन्स पाकिस्तान के किस रीजन में. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर लैंड सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. अब हमने एक मसले की तरफ रेफर किया कि एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें प्रॉब्लम होता है वाटर लॉगिंग का. ये प्रॉब्लम किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो अब ये हम हायर कॉग्निशन पे गए. हमने नॉलेज नहीं पूछी, हमने ये एक मसला दिया और उसको बोला ये मसला किसकी मौजूदगी से होगा. ट्यूबवेल होंगे तो होगा, पर्शियन व्हील लगा होगा तो होगा, पेरेनियल कैनल्स होंगी तो होगा, इन्यूडेशन कैनल्स होंगी तो होगा. तो अब बच्चे को जब तक इसका ये प्रॉब्लम पता ना हो और ये किन किन चीजों की वजह से होता है ये पता ना हो, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता. दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज हायर कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग. और ये तीसरा सवाल, अहमर हैज इनहेरिटेड a land which has become infertile due to the presence of salt on the surface. He wants to use the land again for the purpose of agriculture. The solution that should be recommended to him is to. तो हमने यहाँ पे एक पूरी सिचुएशन बनाई कि एक अहमर को एक इनफर्टाइल लैंड मिली है क्योंकि उसके ऊपर नमक मौजूद है और उसको दोबारा फर्टाइल करना है. उसको वो चाहता है कि उसको दोबारा एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए. इसका सोल्यूशन क्या है? अब एक मसला दिया और उसका सोल्यूशन मांगा. अब बच्चे को पहले इस मसले की जानकारी होनी चाहिए, फिर इस मसले के लिए क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जो कि सॉल्ट की प्रेजेंस को खत्म करें. मसला बड़ा क्लियर है, सॉल्ट की प्रेजेंस. तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अंदर से वो ये सोच के बताएगा कि इसके अंदर कौन सा ऐसा सॉल्यूशन वो अप्लाई करेगा तो उसका ये मसला खत्म हो गया. सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट इज हायर कॉग्निशन. सिमिलरली अब हम फिजिक्स पे चले जाते हैं. अगेन हम लोग नीचे से शुरू करेंगे. द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ शोज, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. एक स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है? डिस्टेंस. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. इसी टॉपिक को अगर हम थोड़ा हायर कॉग्निशन पे टेस्ट करना चाहें तो वो क्या होगा? अब हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया और उसके ऊपर मोशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स दिखाया और फिर हमने ये पूछा कि कांस्टेंट स्पीड पे कौन सा ऑब्जेक्ट है. तो अब इस सवाल के अंदर हायर कॉग्निशन रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस. रहा स्पीड टाइम ग्राफ है.
अब वो इसको देखेगा कि ओके कांस्टेंट स्पीड पे कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रैवल रिक्वायर्ड है। तीसरा सवाल अगेन स्पीड टाइम ग्राफ है, दैट डिपिक्ट्स द मोशन ऑफ अ कार। अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ देके ये बोला कि अब तुम हमें डिस्टेंस बताओ कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। अब यहाँ पे उसको एप्लीकेशन करनी है, वो जानता है स्पीड एंड टाइम ग्राफ क्या होता है, वो उसको रीड करेगा, वो उसको समझेगा। इसके बाद वो उसको ये समझना होगा कि डिस्टेंस निकलेगा कहाँ से, एरिया अंडर द कर्व होगा यहाँ पे, ये हमने बताया नहीं है, ये उसको खुद समझना है। फिर उसके बाद एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा, इसकी कैलकुलेशन बी से सी तक किस तरह होगी, ये तमाम चीजें एप्लीकेशन में। तो आपने देखा कि एक टॉपिक को यूज करते हुए किसी एक सब्जेक्ट के अंदर हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे अपना ये सेशन खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच। वी होप कि इस सेशन के अंदर वी हैव बीन एबल टू आंसर फ्यू वेरी की क्वेश्चंस ऑफ योर्स, कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज किस तरह के होने चाहिए और यूजिंग दी एमसीक्यूज हम लोग हायर कॉग्निशंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स भी आपके साथ शेयर किए गए। We hope that the session was productive for you and it was helpful for you. Thank you so much. Now I would like to hand it over back to Munira Mohammed. Thank you so much, Rabia, for such a wonderful, and Afreen as well, for such a wonderful and detailed session. Now we will open the forum for the question answers. While we are answering your question, I have just posted a link on the chat box. Kindly use that link and fill up the evaluation form. As soon as we receive your evaluation forms with your proper name and email address, please be aware that जो नाम आप अपने evaluation form पे लिखेंगे वही नाम आपके certificate पे आएगा। तो please make sure कि आप अपना नाम की spelling सही टाइप करें, email सही लिखें और आपको आपका certificate पहुंच जाएगा। ठीक है? Okay. Let's go to the question answers now. I would now request Rabia. When we were discussing the STEM, there were a lot of queries regarding that. Is there any criteria or ratio in terms of how many MCQs should be there from the scenario-based questions and how many MCQs should not be there of the scenario or should carry just lead-in and options? So yes, your comment on that, Rabia. Okay. So कितने क्वेश्चन स्टेम वाले होने चाहिए एग्जामिनेशन पेपर में? रिमेंबर कि एग्जामिनेशन पेपर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंटायर सिलेबस। उसके अंदर कॉग्निटिव लेवल्स का वही हम बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं जो कि आपके सिलेबस का होता है। उसको हम लोड नहीं करेंगे with questions that are STEM based. There should always be a balance of knowledge based question, understanding and application. अच्छी assessment वो होती है जो हर level पे जाके student को assess करे. So we need understanding, we need knowledge as well, and then we need application. और जहाँ पे STEM के सवालात की बात आती है तो usually वो understanding और application को refer कर रहे होते हैं. So that means कि हमारे पास जो ratio है वो इस तरह से distributed होगा कि knowledge भी हो, understanding भी हो और application. Thank you so much, Rabia. Another interesting question that was brought in was कि आपने तो कहा कि सिर्फ 3 डिस्ट्रैक्टर और 1 की होती है। क्या हम 4 डिस्ट्रैक्टर और 1 की रख सकते हैं या 2 डिस्ट्रैक्टर और 1 की रख सकते हैं? क्योंकि बाज़ दफा ऑप्शन बनाना मुश्किल हो जाता है या डिस्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा होता, तो फिर क्या करें? ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको एविडेंस मिलेगा कि एमसीक्यू के अंदर 5 ऑप्शंस भी होते हैं। आपने इस तरह की असेसमेंट्स देखी होंगी, A B C D E ऑप्शंस भी होते हैं, कहीं पे कम भी होते हैं, 3 भी होते हैं। ये चीजें आपको मिलेंगी, ऑनलाइन भी मिलेंगी। हाउएवर आसान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ने अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए 4 को रखा है। हमारे पास 4 ऑप्शंस इसलिए हैं बिकॉज 3 is too less to assess the students fairly, और ये देखा गया है कि 4 से जब आप 5 पे चले जाते हैं तो हर एडिशनल डिस्ट्रैक्टर इज नॉट रियली हेल्पफुल इन सक्सेसफुली डिस्ट्रैक्टिंग द स्टूडेंट।
जब 5 हो जाते हैं तो यूजुअली उनमें से कोई एक ऐसा डिस्ट्रैक्टर होता है जिस पे कोई भी स्टूडेंट नहीं जा रहा होता, इसलिए ये देखते हुए हमने 4 की प्रैक्टिस रखी। हाउएवर एज टीचर्स अगर आप चाहें तो आप यस बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वी वुड सजेस्ट कि आप अगर AKU EB के पैटर्न को फॉलो करें, बिकॉज आपके स्टूडेंट्स को कल को उसी में अपीयर होना है, तो इट वुड बी अ बेटर प्रैक्टिस टू गिव देम MCQs that have 4 options. Okay, thank you so much. Another question actually related to mathematics and the concept of theorem. So there has been a general two questions regarding that majorly कि थ्योरम को किस तरह क्लास में पढ़ाएं कि बच्चा MCQ के लिए प्रिपेयर हो, क्या हमें हर चीज उनसे सॉल्व करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो ये सवाल है। Okay, thank you Munira. So the thing is कि थ्योरम की स्टेटमेंट का रट्टा लगाना या उसके प्रूफ्स का रट्टा लगाना इज नॉट पार्ट ऑफ AKU EB असेसमेंट। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अ सिंपल प्रॉब्लम विद द बेसिस ऑफ अ थ्योरम। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इन क्लास यू टेक questions that are built around a theorem. So theorem के अंदर we know कि there is a statement और फिर उस statement को use करते हुए you can solve various kinds of problems. ये problems अगर आप as a teacher अपने पास compile कर लें, जमा कर लें, तो ये questions आप अपनी class में ले जा सकते हैं। फिर on each question you can ask students to answer कि इसका क्या जवाब है, and then you can generate a debate on it कि okay अगर ये answer है, ये answer क्यों नहीं है। So that would help them understand the theorem more कि अच्छा ये ही जवाब है, why is the incorrect answer incorrect. They will have to go back to the theorem कि क्योंकि theorem ये कह रहा है because this leads to this, that is why this answer cannot be the correct answer and this has to be the correct answer. The more problems you share with them, the more examples you share with them, the more past papers you share with them. हमारे अपने ही AKU EB के past papers में आपको countless ऐसे सवालात मिल जाएंगे जो आप practice के लिए अपनी class में इस्तेमाल कर सकते हैं. So that is the best way to deal with it. Thank you so much, Rabia. Another question that we got over here was that क्या MCQ सारे मुश्किल बनाए जाएं या moderate बनाए जाएं? तो बेसिकली हमारी एक्सरसाइज या जो आज का हमारा सेशन था was to tell you how to make one best MCQ. अब वो उसका डिफिकल्टी लेवल वो आसान भी हो सकता है based on the concept, based on the structure, वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, वो वेरी डिफिकल्ट भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है. Now when you are setting up an examination paper, उसकी डिफिकल्टी सेट करना आपके हाथ में है कि आप उसको बैलेंस रखें जिसमें आसान सवाल भी हो, मॉडरेट सवाल भी हो और डिफिकल्ट सवाल भी. ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको सारे MCQs डिफिकल्ट बनाने हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे MCQs आपको आसान बनाने हैं. तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. एक और चीज जो कल बहुत डिटेल में बात हुई थी वो यही थी कि ATP जो हमारा एग्जाम है इस दफा का वो MCQ बेस्ड ही होगा. अब एक जनरल क्यूरी या जनरल कंसर्न जो आ रहा है वो ये है कि क्या थ्योरी के सवालात भी उसमें आएंगे. कल बहुत डिटेल से बताया गया है, मैं वापस से रिइटरेट कर देती हूँ कि डेफिनेटली जब हम ATP पढ़ा रहे हैं या एक प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी तो होगी, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चल तो रहा होगा. वो एक स्टैंड अलोन कोई ऑब्जर्वेशन या प्रैक्टिकल तो है नहीं. तो नेचुरली आपके सवालात ना सिर्फ उसकी हैंडलिंग, उसके इक्विपमेंट, उसके रिजल्ट्स पे भी होंगे बल्कि उसके साथ साथ उसकी थ्योरी पे भी सवाल पूछे जाएंगे. तो इस सिलसिले में आपके पास ATP का मॉडल पेपर अलग से वेबसाइट पे अपलोडेड है. काइंडली उसको देखें और उसको अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें ताकि वो चीज आपके लिए फर्दर क्लैरिटी पे आए. दूसरा, हम ये नहीं कह रहे कि आप ATP की वजह से प्रैक्टिकल ना करवाएं. प्लीज बच्चों को प्रैक्टिकल्स डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं. इधर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करें अगर पॉसिबल है, नहीं है तो एटलीस्ट वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन करके जरूर दिखाएं ताकि उनको अंदाजा हो कि ये प्रैक्टिकल वर्क किस तरह करता है.
there would be MCQs which would be based on the working of that particular objective. I hope this clarify a lot of concerns that were coming in. और इसमें theory questions भी हो सकते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ जो SLO लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट भी हो सकता है. ठीक है? So I hope this has given you a better perspective. ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हम सिर्फ ये आखिरी सवाल लेते हैं. यहाँ पे एक सवाल हमारे पास आया था कि कभी कभी आपने कहा कि सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करें, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना इस्तेमाल करें. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से यहाँ मुराद ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हो और जिसकी उस सवाल में जरूरत हो. ठीक है? तो वो रेलेवेंट के तौर पे ही काम करेगी और प्लीज उन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आप सवाल का हिस्सा जरूर बनाएं. लेकिन अगर वो आपके सवाल में कोई मदद नहीं कर रही जवाब देने में या जवाब तक पहुंचने में, तो उसका वहां पे होना बच्चे के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, उसका वक्त लग रहा है. वो इतना वक्त वो किसी और MCQ पे भी लगा सकता है. तो प्लीज काइंडली उस चीज को बैलेंस आउट जरूर कीजिएगा. आई होप आप सब ने अपना इवैल्यूएशन फॉर्म भरना शुरू कर दिया होगा. ठीक है? एंड हियर वी वुड लाइक टू टेक लीव. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अटेंशन, फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेज एंड अ वंडरफुल फीडबैक. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.